Hello students. In the last video we have discussed one important point of this lesson. The name of the lesson you know that very well, rational numbers. In the last point we have discussed how to represent given rational numbers on the number line. Now I am here with a new point. What is that new point? Look here. With new point, what is the new point? Rational numbers between two rational numbers. Now the next point from this lesson I am going to start. The new point I read before that, rational numbers between two rational numbers. The meaning of this concept is how to find out rational numbers in between two rational numbers. Here I have written one example also. Write three rational numbers in between 3 upon 10 and 7 upon 10. Write three rational numbers in between 3 upon 10 and 7 upon 10. They may ask question like that also. Find three rational numbers in between 3 upon 10 and 7 upon 10. If you will observe carefully, then you will come to know that here I have, look here I have beginning, I have written over here solution and given. What is given? 3 upon 10 and 7 upon 10, that I have written here. Look here, 3 upon 10 and 7 upon 10, simply whatever given that I copied here, nothing else. I have started this example, 3 upon 10 and 7 upon 10. Okay. If you will observe carefully, then you will come to know that what is here, one important thing is there, here one common thing in between those two rational number. What is that common thing? Look carefully. Here denominator of both the rational number is equal. What is denominator of both the rational number is equal? Means remember that whenever we are finding rational numbers in between two rational numbers, that time first of all we have to observe that the denominator of the given rational number is equal or not. If it is equal, then doesn't matter. If it is not equal, then we have to make it equal. Now here in this example, first of all we will see if the denominator is given equal, then how to find out rational numbers in between two rational numbers. Now look, once again I will read here example. Write three rational numbers in between 3 upon 10 and 7 upon 10. 3 upon 10 and 7 upon 10. Whatever given things are there, I have written over here. Now I am going to start this example. Look here. Solution given, what is given? 3 upon 10 and 7 upon 10. Then the first point is that first of all we have to look the denominator. We have seen the denominator equal, then no need to make it equal. पहली स्टेप समझ में आ गई. क्या करना है पहली स्टेप में? पहले डिनोमिनेटर देखना है. डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो फिर से बनाने की जरूरत नहीं है. We have to start that example as it is. Okay, now look here, then the numbers are, देखो अभी इधर डिनोमिनेटर इक्वल है. रिप्रेजेंटेशन में मैंने तुमको बोला था जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर पहले क्या करना चाहिए, पहले इक्वल ही हमने रखा था, वो पहले इक्वल ही होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, वो रैशनल नंबर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. उतने ही जितना डिनोमिनेटर होता है उतने ही पार्ट्स हम बनाते हैं. आर यू गेटिंग? तो इधर भी डिनोमिनेटर इक्वल है तो कुछ बात नहीं है, हम डायरेक्टली थ्री रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो इधर 3 है पहला, 3 अपॉन 10. ओके, तो जनरली डिनोमिनेटर इक्वल है तो रेगुलर नंबर लिखते जाएंगे. 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4. तो डिनोमिनेटर कॉमन रहेगा 4 अपॉन 10. 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5 अपॉन 10. 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? 6 अपॉन 10. और 6 के बाद लास्ट नंबर हमें दिया है 7 अपॉन 10. देखो इधर क्या किया है हमने, डिनोमिनेटर एक ही रखना चाहिए. ये बात ध्यान में रखो. डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो इक्वल करना पड़ेगा. समटाइम एग्जाम्पल में क्या होता है, इसका और इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं. उस टाइप के एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे. पहले ये डिनोमिनेटर इक्वल है तो सिंपली क्या करना है, देखो नंबर लिखा, पहला नंबर 3 अपॉन 10. ओके, लास्ट नंबर है 7 अपॉन 10. तो बीच में 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 हो गए. डू यू अंडरस्टैंड? देन 3 रैशनल नंबर्स आर, देन 3 रैशनल नंबर्स आर. देखो 3 रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो गए, ये नंबर और ये नंबर पहले हमको दिया है, तो बीच में के जो 3 रैशनल नंबर्स है एज इट इज लिखेंगे. 4 अपॉन 10, 5 upon 10 and 6 upon 10. Finish.
ये हो गया आंसर। इतना ही करना है तुम्हें, समझ में आ रहा है। पहली स्टेप मैंने क्या किया देखो, एज इट इज जो गिवन है वो लिखा। दूसरे, इसके बीच में जो रैशनल नंबर्स आते हैं वो लिखे। और तीसरा क्या किया, जो रैशनल नंबर्स हमें मिले उसका आंसर लिख दिया। ओके, दोज आर क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वेश्चन, राइट 3 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 3/10 एंड 7/10। वी हैव रिटन हियर 3 रैशनल नंबर्स। गॉट आइडिया, बट डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। आई विल शो यू दिस सेम एग्जाम्पल। अभी इधर 3 रैशनल नंबर्स हमें पूछे थे, 3 रैशनल नंबर्स हमने फाइंड आउट किए। दे में आस्क इन ए डिफरेंट वे आल्सो। ओके, एग्जाम्पल इधर लिखता हूं, देखो मैं, क्वेश्चन नंबर 2, राइट 10 rational numbers, write 10 rational numbers in between, ये एग्जाम्पल लेंगे हम 3/10 एंड 7/10, 3/10 एंड 7/10। अभी इधर देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। हमने क्या किया, इधर डायरेक्ट नंबर लिखे थे, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। अभी इधर ध्यान से देखो, इस ये एग्जाम्पल लिया है हमने, देखो राइट 10, अभी कितने लिखने हैं, 10 रैशनल नंबर लिखने हैं। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 आ गया, यानी कि पहला और जो लास्ट नंबर है उसके बीच में 3 रैशनल नंबर इधर है, इसके आगे रैशनल नंबर हो ही नहीं सकते, ऐसा हमें लगता है अभी एग्जाम्पल देखने के बाद। तो ये इस टाइप के एग्जाम्पल अगर दिए जाए तो वो डिफरेंट तरह से सॉल्व करने होते हैं। ओके, कैसे सॉल्व करने होते हैं, इधर पहली स्टेप मैंने जो बताई वही स्टेप पहले हमें फॉलो करना है। क्या करना है, देखो सॉल्यूशन, पहले गिवन, व्हाट इज गिवन, 3/10 एंड 7/10। अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 और 7 के बीच में 3 और दिस 7, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं मैं, इन बिटवीन 3 एंड 7 ओनली 3 नंबर्स आर देयर। 3 और 7 के बीच में कौन कौन से नंबर है, 4, 5, 6। ओके, 4, 5, 6। इधर क्वेश्चन क्या था, 3 रैशनल नंबर्स, तो इधर 3 रैशनल नंबर मिल गए। अभी इधर भी देखो सेम नंबर है, 3 और 7 के बीच में कितने नंबर है, खाली ओनली 3 नंबर्स हैं। तो 10 नंबर्स कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं हम 10 नंबर्स। कैसे निकाल सकते हैं, देखो पहली स्टेप मैंने जो बताया वही, पहले इसका डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होने के कारण डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है। तो बाद में क्या करना है, देखो पहला नंबर कंसीडर करो। नाउ ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, नाउ विच इज द फर्स्ट नंबर, 3/10, एंड विच इज द सेकेंड नंबर, 7/10। Got idea what I did? Copied as it is same numbers, 3/10 and 7/10। ओके, बाद में क्या करना है, देखो इधर 3 और दिस 7 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें, कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग हमें क्या मिल सकते हैं, उसके बीच में नंबर्स मिल सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल देखो इधर, अगर 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, ओके, अगर 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। 7 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो 3 और 7 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 4, 5, 6। आर यू गेटिंग? तो ये नहीं है, तो 1 से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर इस 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 7 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा। ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज में, इधर अंडरस्टैंडिंग होने के लिए मैं दिखा देता हूं। देखो इधर ये एग्जाम्पल में लिखने की जरूरत नहीं है। इधर देखो 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 3 आएगा, एंड 7 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 7 आएगा। अभी देखो 3 और 7 के बीच में 3, 4, 5, 6, 7 कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स है। हमें तो कितने नंबर्स चाहिए, 10 नंबर्स चाहिए। यानी कि हम 3 को और 7 को 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके, अगर हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 कितना आंसर आएगा, 6, एंड 7 इंटू 2 कितना आंसर आएगा, 14। समझ में आ रहा है? मैं डिनोमिनेटर की बात ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है, हमें अभी न्यूमरेटर की बात करनी है ओनली। अभी इधर देखो 6 और 14 आ गया, तो 6 और 14 में कितने नंबर होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14।
कितने नंबर है देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स है। हमें कितने नंबर्स चाहिए, 10 नंबर्स चाहिए। अभी तुम बोलोगे हमें नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला है 3/10 और 7/10 के, और इधर 6 और 14 आ गया, तो ये कैसे चेंज हो गया। हमने क्या किया, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 7 को भी क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। हमें कितने चाहिए नंबर, 10 चाहिए। अभी हमें इधर कितने मिले, 7 मिले, तो 2 से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 3 से मल्टीप्लाई करके देंगे। इधर लिख के दिखाता हूँ, देखो 3 इंटू 3 अगर किया जाए तो आंसर आएगा 9, एंड 7 इंटू 3 अगर किया जाए तो आंसर आएगा 21। ओके, अभी 9 और 21 के बीच में कितने नंबर आते हैं देखो, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अभी देखो ध्यान से नंबर्स कितने हैं, 9 और 21 छोड़ दो, क्योंकि 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके और 7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके ये 9 और 21 ने निकाला है। तो 9 और 21 हमें छोड़ दिया। बीच में नंबर कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर है। और हमें कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं इधर, 10 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। डू यू अंडरस्टैंड, हमें कितने नंबर्स इधर फाइंड आउट करने हैं, 10 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 3/10 और 7/10 को हमें क्या करना पड़ेगा, इधर ध्यान से देखो, 3/10 और 7/10 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, यानी कि ऐसे देखो, इधर 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, नहीं तो वैल्यू चेंज हो सकती है। 10 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना आ गया, 9, 10 इंटू 3 कितना आ गया, 30। इधर देखो 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, समझे, 7 इंटू 3 कितना, 21 डिवाइडेड बाय 30। यानी कि अभी हमें नंबर किस दो नंबर में से फाइंड आउट करने हैं, 9/30 एंड 21/30। अगर 9 को 3 से डिवाइड किया जाए तो 3 आएगा, अगर 21 को 3 से डिवाइड किया जाए तो 7 आएगा। समझ में आ रहा है, तो कैसे लिखना है देखो, नेक्स्ट, नाउ द नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर्स, पहला नंबर हमारा कौन सा है अभी, 9/30, और दूसरा नंबर कौन सा है, 21/30। तो पहला नंबर हम इधर लिखेंगे 9/30, दूसरा नंबर 9 के बाद कौन सा होता है, वही 10/30, 11/30, 12/30, 13/30, गॉट आइडिया, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30, 18/30, 19/30। कितने हो गए नंबर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 20/30 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन 10 ही नंबर हमको बोला है, तो इधर डॉट 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 लेंगे और लास्ट नंबर लिखेंगे 21/30। समझ में आ गया, यानी कि 9/30 यानी कि इसका मतलब क्या है, 3/10, और 21/30 का मतलब क्या है, 7/10, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या रहती है, कॉमन सेम रहती है। समझ में आ रहा है, ओके, वैल्यू सेम रहती है, तो हमें 10 नंबर से भी मिल गए देखो। ओके, डू यू अंडरस्टैंड, ये हो गया आंसर। ओके, ऐसे हमें सॉल्व करना है, गॉट आइडिया। अभी एक तीसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, थोड़ा सा अलग किस्म का, देखो इधर, फाइंड रैशनल नंबर्स, find rational numbers in between 2/7 and 3/7। इधर देखो 2/7 and 3/7। अगर ये तुम्हें समझ में आया है तो ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, 2/7 and
3/7। सोल्यूशन गिवन क्या दिया है हमें, 2/7 एंड 3/7। अभी ये 2 और 3 के डिनोमिनेटर तो सेम है। आज मैं सारे डिनोमिनेटर सेम के एग्जांपल ही दिखा रहा हूं। इधर इधर डिनोमिनेटर तो सेम है। अभी 2 और 3 में कितने नंबर आते हैं देखो, एक भी नहीं नंबर आता। ओके, तो हमें इधर कितने फाइंड आउट करने हैं, मैंने नंबर लिखना है इधर देखो, फाइंड रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 2/7 एंड 3/7। कितने नंबर फाइंड आउट करने देखो, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स। ओके, सॉरी फॉर दैट, लुक हियर, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 2/7 एंड 3/7। ओके, लिखते वक्त ये मिस हो गया। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 2/7 एंड 3/7। व्हाट आई सेड। ओके, हमें क्या करना है अभी, 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, किसके, 2/7 एंड 3/7 में से। ओके, 2/7 एंड 3/7 में से। सॉल्यूशन गिवन, क्या गिवन है, 2/7 एंड 3/7। तो 2 और 3 में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, अगर जनरली हम देखेंगे तो 2 और 3 में एक भी रैशनल नंबर नहीं है। ओके, क्योंकि 2 के बाद सडनली 3 आता है, डिनोमिनेटर तो सेम है। तो इधर भी क्या करना है देखो, हमें क्या करना है, 2 और 3 को चेक करने के लिए क्या करना है, पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ओके, 3 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने इधर मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है दिखाया है तुमको। ओके, ये एग्जाम्पल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट भी तुम लिख सकते हो। अभी मैं डायरेक्ट कैसे लिखना है मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। इधर ये मैंने तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाया है कैसे आते हैं नंबर्स। 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 नंबर्स आ गए, 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इतने नंबर्स आ गए, 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इतने नंबर्स आ गए। ये मैंने तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाया है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम्हें ये नंबर्स लिखने हैं। कैसे नंबर्स लिखने हैं, हमें माइंड में ये आंसर आ सकता है। ओके, देखो अभी 2/7, ओके, एंड 3/7। अभी माइंड में कैसे कैलकुलेशन करना है मैं अभी बता देता हूँ। देखो 2 और 3 के बीच में एक भी नंबर नहीं है। अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा, 4 एंड 6। 4 और 6 के बीच में कितने नंबर आते हैं देखना है। ओके, 4 और 6 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 4, 5, 6, दो ही नंबर आते हैं। अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, इधर जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो वही नंबर इधर भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। ओके, अगर 2 को 3 से और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 इंटू 3 कितना होगा, 6, और 3 इंटू 3 कितना होगा, 9। ओके, इधर मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, इधर मैं माइंड में कैसे करना है वही तुम्हें दिखा रहा हूँ। 2 का और 3 का टेबल तो आता है हमें, टेबल आने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितने होंगे, इधर होंगे 6, इधर होंगे 9। ओके, 6 और 9 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 3 नंबर आते हैं। समझ में आ रहा है कुछ। ऐसे अगर हम देखते जाए ओके, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, देखो 2 इंटू 10 कितना होगा, 20, 3 इंटू 10 कितना होगा, 30। बीच में नंबर कितने आते हैं देखो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 9 नंबर आते हैं। हमें कितने नंबर चाहिए, 10 नंबर्स चाहिए। हमें कितने नंबर्स चाहिए, 10 नंबर्स चाहिए। तो हमें इधर देखो, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए, इसको भी अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 20 और 30 हो जाएगा। 20 और 30 के बीच में भी 9 नंबर्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, और 3 को भी 11 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने न्यूमरेटर के साथ साथ डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। तो 7 इंटू 11 और 7 इंटू इधर भी 11, 2 इंटू 11 22, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 11 77, 3 इंटू 11 33, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 11 77। अभी इसके बीच में कितने नंबर्स है देखो, अभी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। पहला नंबर 22/77, दूसरा 22 के बाद 23/77, 24/77, 25/77, 26/77। हमें कितने नंबर चाहिए, 10 हो गए कितने, 1 2 3 4, 26।
27, 28, 29, 30. ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 31, 32, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट नंबर कौन सा है अपना 33/77। अब ये नंबर्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए 10 नंबर्स। समझ में आ रहा है? ओके, गॉट आइडिया अबाउट इट? डू यू अंडरस्टैंड? देखो मैंने आज के लेक्चर में क्या बताया है, आज के लेसन में मैंने क्या बताया है, एग्जाम्पल्स कौन से आते हैं। देखो इधर फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये आज का टॉपिक था हमारा रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। जो दिए होते हैं रैशनल नंबर्स उसमें से वो जो दो रैशनल नंबर दिए होते हैं उसमें से बाकी के नंबर्स कितने फाइंड आउट किए, कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन के अनुसार फाइंड आउट करने हैं। इधर देखो पहला क्वेश्चन हमने लिखा था राइट 3 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 3/10 एंड 7/10। मैंने दो पार्ट्स बना के इधर से स्टार्ट किया था। सॉल्यूशन एंड गिवन क्या दिया है 3/10 एंड 7/10 एज इट इज इधर लिखा है। देन द नंबर्स आर ओके 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। इधर मैंने पहली स्टेप तुमको बताई, पहले हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो कुछ बात नहीं है, अगर नहीं है तो इक्वल करने पड़ेंगे। इक्वल कैसे करने हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज हमें देख रहे हैं डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो उसके वो जो नंबर्स दिए हैं उनके बीच में के रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। ओके देखो इधर ये हमने लिखा नंबर, पहला नंबर 3/10, लास्ट नंबर 7/10, उसके बीच में 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। तो हमें 3 रैशनल नंबर्स मिल गए। यही था हमारा क्वेश्चन। बट सम टाइम यही क्वेश्चन हमने लिया राइट 10 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 3/10 एंड 7/10। सॉल्यूशन और गिवन मैंने लिखा। अभी इधर देखो 3 और 7 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स आते हैं, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किए थे। ओके तो हमें अभी क्या करना है 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 10 रैशनल नंबर्स के लिए इस नंबर को हमें चेंज करना पड़ता है। चेंज करना पड़ता है यानी कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, इधर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक नंबर हमें ऐसा फाइंड आउट करना है कि उसके बीच में से हम 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हमने पहले देखा 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 7 को भी 1 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया। तो 3 और 7 के बीच में नंबर्स देखें 4, 5, 6, 3 आ गए। तो बाद में हमने क्या किया 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया। ओके उसके बीच में हमने रैशनल नंबर देखे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फर्स्ट और लास्ट नहीं कंसिडर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 रैशनल नंबर्स आ गए। 7 रैशनल नंबर्स आ गए, हमें 10 फाइंड आउट्स करने हैं। अगर 7 पूछे जाए तो यही लिखना है। ओके हमें 10 फाइंड आउट्स करने थे। 10 फाइंड आउट्स करने के लिए हमने क्या किया, बाद में 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया। बाद में 9 और 21 आ गया इधर आंसर। हमने लिखे फर्स्ट और लास्ट को और बीच में 1 2 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हमें कितने नंबर्स मिल गए 10 नंबर्स मिल गए। 10 नंबर्स मिलने के बाद हमने आंसर लिखा। देखो कैसे आंसर लिखने के पहले हमें 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 10 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। जिस नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 9/30, इधर भी मल्टीप्लाई किया तो 21/30। तो अभी हम नंबर फाइंड आउट किस नंबर से फाइंड आउट करने के लिए डिसाइड किया 9 और 20, 9 डिवाइड बाय 30 एंड 21 डिवाइडेड बाय 30। ओके 9 डिवाइडेड बाय 30 इज नथिंग बट 3/10 एंड 21 डिवाइडेड बाय 30 इज नथिंग बट 7/10। तो हमने इधर लिखा देखो 9 डिवाइड बाय 30, उसके बाद सारे नंबर्स 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इधर हमें 10 नंबर्स हो गए तो 20/30 लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए डॉट डॉट करके इधर कॉमा देना है और लास्ट नंबर लिखना है 21/30। हमें जितने फाइंड आउट करने के लिए बोला है उतने नंबर फाइंड आउट करो, बाकी के नंबर अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो डॉट डॉट करके लिख दो। ओके आर यू गेटिंग? तो ऐसे हमें क्या करना पड़ता है,
अगर इस नंबर में रैशनल नंबर नहीं मिल रहे तो मल्टीप्लाई करके उस नंबर को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद रैशनल नंबर फाइंड आउट करने। इधर एक तीसरा एग्जांपल मैंने लिया, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 2/7 एंड 3/7। तो 2 और 3 के बीच में एक भी रैशनल नंबर नहीं है, तो हमने क्या किया, वैसे ही मल्टीप्लाई करके देखा। इधर मैंने पूरे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया है, माइंड में कैसे मल्टीप्लाई करना है मैंने तुमको बताया। ओके, और हमने डिसाइड किया 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्या किया, दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 11 से मल्टीप्लाई किया। हमें नंबर्स मिले 22/77 एंड 33/77, और बाद में हमें ये 10 रैशनल नंबर्स मिले गए। 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। डिनोमिनेटर सेम होने के कारण कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। ये है फर्स्ट टाइप, हाउ टू फाइंड आउट द रैशनल नंबर्स इफ द डिनोमिनेटर इज सेम। ओके, नोट्स के लिए मैं पेज दे रहा हूँ, वो पेज देखो, वही नंबर्स मैंने इधर भी जो मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाए वही एग्जाम्पल्स मैं इधर भी दिखा रहा हूँ। ओके, ये नोट्स में एज इट इज़ कॉपी करो। ये था हमारा टाइटल, रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स। ये था पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइप भी मैंने इधर लिखा है। ये कैसे सॉल्व किया मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया, मैं अभी पेज दिखा रहा हूँ नोट्स के लिए। ये दूसरा एग्जाम्पल 10 रैशनल नंबर्स का। ये नोट्स में एज इट इज कॉपी करना है। ओके, और जो लास्ट एग्जाम्पल मैंने दिखाया ये इधर है, देखो, इन नोट्स में एज इट इज कॉपी करो। ओके, आई होप सो यू गॉट आइडिया अबाउट दिस। रिमेनिंग पॉइंट्स विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट टाइप्स है इसकी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।